you don't. There is so much of glory in this place. इस जगह पर बहुत महिमा मौजूद है. How many people are sick in this place? कितने लोग हैं जो बीमार हैं अपने शरीर में If किसी you're भी रूप sick, से. if you're eating medicine for XYZ reasons, you're blind, you're deaf, please stand up. अगर आप बीमार हैं किसी भी कारण से दवाई खा रहे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, आप खड़े हो जाएं जहां पर भी हैं. Come on, all the sick people. If you're sick in your body, जो you're लोग eating बीमार medicine हैं, for anything. जो लोग बीमार हैं किसी भी कारणवश दवाई ले रहे हैं, उठ जाएं और I खड़े want हो to tell जाएं. you, don't get settled. मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप आराम से ना बैठ जाएं. You know, some people have become settled. Oh, it's okay. It's just little bit of sugar. It's okay. It's little bit of blood pressure. कई लोगों ने मान लिया, उसको ग्रहण कर लिया कि ठीक है, थोड़ा ब्लड प्रेशर ही तो है, थोड़ी शुगर ही तो है. No. I नहीं, want नहीं, to tell नहीं. you, sickness is not for the house of God. Sickness is not for the children of God. मैं आपको बता देना चाहता हूं, बीमारी परमेश्वर के घर के लिए नहीं है, बीमारी परमेश्वर की औलाद के लिए नहीं है. Jesus bore stripes on his back so that we may receive healing. यीशु ने अपनी पीठ पर कोड़े फजूल में नहीं, लेकिन हमारी चंगाई के लिए खाए. Come on, people. Anyone who want to operate in healing, if you are interested, I want you to go near these people. Just like 3-4 people, not more than that. Come on. Go near these people. Lay your hands upon them. अगर Go. कोई भी हो जो चंगाई में बहना चाहता है, वो इन लोगों के पास जाएं. Come on. 3-4 लोगों से ज्यादा एक व्यक्ति के पास नहीं. Come on. जो कोई चंगाई में बहना चाहता है वो Every जाए person और should प्रार्थना have करे. someone laying hands on them. हर एक व्यक्ति जो खड़ा है प्रार्थना के लिए, उसके पास कोई ना कोई हो जो प्रार्थना के लिए जाए. Come on, church. Come on. आए उठ खड़े Come हो, on, go to them. Lay hands on कलीसिया lay उनके hands पास on them. Lay hands on them. उन पर हाथ रखें, Lay hands on them. उन पर हाथ रखें. The Lord is going to heal them right now. प्रभु उनको हमारे बीच में आज चंगा करेगा. Reham braga shata marabandre gadina mase kalaba. Rio shata maramase koromo dragadina mase kele. Karaba satana mara labandre gadina mashatana mara. Lembrogo shetam braga denam rage seto no moro mondrege dene. Father, in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth, पिता यीशु मसीह नासरी के नाम में we take authority over the spirit of infirmity. मैं उस बीमारी की आत्मा के ऊपर अधिकार लेता हूँ. Every sickness, हर बीमारी, every infirmity, हर बीमारी, hear my voice right मेरी now. आवाज ध्यान से सुनो. I take authority over every sickness, every disease right now. मैं हर एक बीमारी और रोग के ऊपर इस समय अधिकार लेता हूँ. And I command you, leave these people right now. और मैं तुझे अधिकार देता हूँ, तुझे आदेश देता हूँ कि इन लोगों को छोड़ दे इस समय. I take authority over cancers, मैं कैंसर के ऊपर अधिकार over लेता हूँ, tumors, और ट्यूमर्स के ऊपर, over diabetes, डायबिटीज के ऊपर, over bone disorders. हड्डियों के रोग के ऊपर. Lord, any kind of sickness, if it has a name, it will flee in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth. चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, उसका नाम है तो वो यीशु के नाम के Father, नीचे उसमें मैं अधिकार I देता हूँ. release your healing, Lord, प्रभु मैं आपकी चंगाई खोल देता हूँ जगह from पर. the crown of their head to the soles of their feet. इन लोगों के सर से लेकर पांव तक Spirit of pain and affliction, go. दर्द और सताव का आत्मा इनको छोड़कर निकल जाए. Every demonic spirit, go. हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर निकल जा. Hearing be restored. सुनने की शक्ति वापस लौटाई जाए. Lord, in the name of Jesus. यीशु के नाम में. Now, body, hear my voice. शरीर मेरी आवाज को सुनो. Every body that is sick in this place, I command you, be healed. इस प्लेस में हर एक, इस जगह पर हर एक शरीर जो बीमार है, मैं तुझे आदेश देता हूँ चंगा हो जाने के लिए. Be healed. चंगे हो जाओ. Be healed. चंगे हो जाओ. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Come on, people. Check. Tell them to check their bodies. Tell them to do something that they were not able to do before. आप जिनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उनसे कहें अपने शरीर को परखें, कुछ करें जो पहले नहीं कर पाते थे. उनको बोलें अपने शरीर को परख कर देखें. And people who got healed, come on, bring them forward. We are going to take some testimonies. और जो लोग चंगे हो गए हैं प्रार्थना के बाद, उनको आप आगे लेकर आए, हम गवाहियां लेंगे. Come on. Tell them to check their bodies. उनसे कहें अपने शरीर को परखें. Come on, volunteers. Come on. Tell them to check their bodies. वॉलंटियर्स आप उनसे कहें अपने शरीर को परखने के लिए. इनको इस कान से सही सुनाई नहीं देता था, ये कह रहे हैं आप इनको सही सुनाई दे रहा है.
कम ऑन, कितने समय से? हाँ नहीं, ये कितने समय से आपको दिक्कत थी? ये सुन नहीं पाते थे आप? बचपन से? बचपन से ये अपने दाएं कान से सुन नहीं पाते थे सही से. Jesus has healed him. Come on, church. Come on, give him glory. उसकी महिमा करें. Father, bless him, Lord, in the name of Jesus. I release your healing power, Lord. Bless him, Father, completely. In Jesus' name. Bless him. In Jesus' name. Come on. Bless him, Lord. इधर कॉलेज में दर्द होता था, मतलब खाना हजम, ये कोई 3-4 साल से था. बिल्कुल दर्द नहीं है. इनको 3-4 साल से अपनी छाती में लगातार दर्द था. अब ये बिल्कुल चंगे हो चुके हैं, कोई दर्द नहीं. प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें चंगा कर दिया. कितने समय से आप? 2 साल से इनको छाती का दर्द था. अभी बिल्कुल दर्द नहीं है. देखिए, कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है. 2 साल से इनको छाती का दर्द था. मेरा हार्ट और सर्वाइकल मतलब सांस की प्रॉब्लम थी. अब महसूस हो रहा है, ठीक हो रही हूँ. कैसे महसूस हो रहा है आपको? मतलब सांस भी जो एकदम जो होता था ना, मतलब सांस फूलता था, वो अब सांस ले पा रहे हैं आप अच्छे से? अब सीख रहे. कितने समय से था आपको? मुझे हो गए 4-5 साल हो गए. दवाई 4-5 साल से वो सांस नहीं ले पा रही थी आंटी. अभी वो कह रही है मैं अच्छे से सांस ले पा रही हूँ. Come on, Sam. You wanna interpret? अभी कैसा है? आप सर नहीं हिला पाते थे? अभी चेक करिए. पूरा घुमाइए, घुमाइए, घुमाइए. ऐसा कर पाते थे आप पहले? अभी कैसा है? कितने समय से? ये 2-3 साल से हो रहा है. इनको 2-3 साल से सर्वाइकल था, गर्दन हिलाने में दर्द होता था. प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें चंगा कर दिया है. Come on, church. मैं फर्स्ट टाइम इस चर्च में आया हूँ आज. और जब मैं आ रहा था तो मैं अपने फ्रेंड के साथ आया. मुझे 4 साल से जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम किसी भी डॉक्टर ने आज तक वो ट्रेस आउट नहीं हो पाया था. बट अभी जब प्रे हुआ तो जस्ट वो सारी स्टिफनेस सारे जॉइंट की मैं काफ़ी ज़्यादा मैं हील्ड फील कर रहा हूँ. और मैं बहुत ज़्यादा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Woo! I want to tell you something. मैं कुछ बताना चाहता हूँ. Jesus is in the house. यीशु घर में मौजूद है. Amen. When Jesus steps in, sicknesses leave, demons leave. जब यीशु कदम रखता है तो दुष्ट आत्मा भाग जाती हैं, बीमारियां चले जाती हैं. गिर गई थी नीचे. 3-4 महीने हो गए. ये गिर गई थी, इनके पीछे हड्डी में दर्द रहता था. अभी चेक करिए. नहीं, अब तो आराम है. नीचे झुकिए, झुकिए, ऊपर उठिए. हाँ, अभी देखिए कैसा है. हाँ, पहले से अंतर है. दर्द है? नहीं है पर कम है. अभी जाएगा पूरा. आंखें बंद करिए. Thank you, Father. We release your healing. 100%, Lord. Thank you, Lord Jesus. We release your healing. Every back pain go now. In the name of Jesus. सर से लेकर पांव तक सारा दर्द go in Jesus name. अभी चेक करिए. उठिए. बैक देखिए. अभी बताइए. हमें अंतर है जी. ठीक है अब तो. ठीक है. हाँ. Hallelujah. Come on, church. लेफ्ट साइड पेन था, वो ठीक हो गया. कितने समय से? थोड़े 1 वीक 1 वीक था. बिल्कुल दर्द नहीं है. नहीं. Come on, check. चेक हो गया, ठीक हो गया. Bless you, sister. एक हफ्ते से she had pain and Jesus healed her. प्रेज द लॉर्ड. इसको लीवर में प्रॉब्लम था. अभी टेस्ट करवाया था कल परसों, तो डॉक्टर ने बोला कि लीवर में स्वेलिंग है. तो ये मेरे ब्रदर की बेटी है. मैं नोएडा से आई हूँ. मैंने इसको चर्च में बुलाया. अभी ये रो रही थी. जब आई मैंने कह रही बुआ जी पेन हो रहा है. मैंने कहा मैं प्रार्थना करती हूँ. अभी जब प्रेयर हुई है तो अभी एकदम रोने लगी. कह रही मेरा सारा पेन ठीक हो गया है. तो प्रभु का धन्यवाद. तो इसने रोना शुरू कर दिया. मैंने कहा प्रभु ने तुझे चंगाई दी है, तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम. Hallelujah. पैर दुखाता था, यहाँ पर ठीक हो गया. कोई बिल्कुल नहीं दुख रहा. जी नहीं, बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं दुख रहा. कितने समय से दुखता था? 10 साल से. 10 साल से. 10 साल से पाँव दुखता था, अब बिल्कुल नहीं दुख रहा.
Amen. बोलो यीशु मसीह की। कमर में दर्द था, गिर गए थे ऊपर से तो दर्द हो रहा था, लेकिन अभी झुक के दिखाइए। बिल्कुल ठीक है। ये गिर गई थी जिसकी वजह से इनके कमर में दर्द था, अभी बिल्कुल कह रही हैं चंगी हो चुकी हैं। मेरे पैर में सूजन है, 4-5 साल हो गया। अभी कैसा है? अब हल्का है। हाँ? अब हल्का है। अभी इससे जब आए थे तब कैसी सूजन थी? बहुत सूजन था। इनका पाँव देखिए, ये कह रही है इनके पाँव में इतनी ज्यादा सूजन थी। यू कैन सी द मार्क्स ऑफ द सैंडल्स। इतनी सूजन थी जब ये आई थी, दैट स्वेलिंग हैज लेफ्ट, शी इज हील्ड। वो सूजन चली गई और ये ठीक हो गई है। हालेलुया। कितने समय से था आपको? 4-5 साल हो गया। 4-5 साल से। शी हैड स्वेलिंग ऑन हर लेग्स। यू कैन सी दैट मार्क्स। 4-5 साल से इनके पाँव में of swelling थी। sandals? आप वो मार्क देख सकते हैं भी सैंडल का। Thank you, Father. Thank you, धन्यवाद Jesus. Thank you, Lord. We bless in Jesus' name. Thank you, Father. Yes. क्या दिक्कत है आपको? वो मेरे कान में दर्द होता है और और सुनाई नहीं देता था। बिल्कुल नहीं। इसकी मम्मी कोई आया है? रिलेटिव कौन है? राइट कान से नहीं सुनाई देता? कम सुनाई देता है? आइए चेक करिए, चेक करिए। दूसरा कान बंद करो बेटा। जो कान से नहीं सुनाई देता उसके दूसरा वाला, जिसे सुनाई देता है उसको बंद करो। सुनाई किससे देता है? राइट में प्रॉब्लम है ना? या ओके, चेक करिए। पहले नहीं देता था, अभी फिर से दूर से, थोड़ा दूर से हल्के से बात बोलिए, बोलिए। हालेलुया। Her eardrum is ruptured उनके कान का जो पर्दा था उसमें छेद था and she was not able to hear properly. और वो बचपन से सुन नहीं पाती थी। आप पापा हैं उनके? भाई। Her brother tested. उसके She भाई can ने hear खुद now. परखा है और वो सुन पा रही हैं। Amen. Woo. Let's go to the word now. आइए Amen. अब हम वचन में चलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Woo. So you remember last Sunday we spoke about how we are not under generational curses. सो हमने रविवार को सीखा था कि कैसे हम उस पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप के अधीन नहीं हैं। You remember? See, we saw how in the Old Testament we saw that how God said that I will visit the iniquity of father to children's children, to third and fourth generation. हमने देखा कैसे पुरानी वाचा में एक जगह पर ये लिखा था पुरानी वाचा में कि कैसे परमेश्वर कहता है कि मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक तुम्हारे पापों को देखूंगा। Numbers 14:18. गिनती 14 उसका 18। Come on, open your Bibles to Numbers 14:18. गिनती 14 उसका 18। Let's see what the Bible says. देखते हैं बाइबल क्या कहती है। Okay? Because this is what many people believe, that they are still under a curse. क्योंकि ये है जो बहुत से लोग अभी भी मानते हैं कि वो एक श्राप के अधीन है। Are you there? Okay. So here God is saying, He will by no means clears the guilty. वो कह रहे यहाँ पे वचन कह रहे कि वो किसी भी रूप से जो दोषी है उसको साफ नहीं करेगा। The Lord is saying, I will by no means clear the guilty. और प्रभु कह रहा है कि मैं किसी भी रूप से जो दोषी है उसके दोष को माफ नहीं करूंगा। Visiting the iniquity of fathers upon the children. और जो बाप दादाओं ने गलतियां की हैं वो उनके बच्चों पर तक मैं उसको To देखूंगा। the third and fourth generation. तीसरी और चौथी पीढ़ी तक मैं उसको देखूंगा। Amen? But in the new covenant, लेकिन नई वाचा में Hebrews 8:12. इब्रानी 8 उसका 12। In the old covenant, we saw God is saying, by no means I'll clear the guilty. पुरानी वाचा में हम देखते हैं परमेश्वर कह रहा है कि किसी भी रूप से जो दोषी है उसको मैं साफ नहीं करूंगा। And I will remember their sins even to the third and fourth और generation. तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनके पापों को मैं याद Now रखूंगा। let's see what he says in the new अब covenant. हम देखते हैं नई वाचा में वो क्या कहता है। For I will be merciful to their unrighteousness. क्योंकि उनकी अधार्मिकताओं के पर मैं दया करूंगा। Oh, are you hearing what I'm saying? क्या आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? And their sins and their lawless deed I will remember no more. और उनके पाप और उनके गलत कामों को अब मैं दोबारा कभी स्मरण नहीं करूंगा। God remembers your sins no
more. अब परमेश्वर आपके पापों को याद नहीं करता. So many people are asking forgiveness 1,000 times for the same thing that they did. So बहुत से लोग 1000 बार माफी मांग रहे हैं उसी गलती के लिए जो उन्होंने की थी. Oh God, please forgive me. ओ प्रभु जी मुझे क्षमा करना Because I did this. क्योंकि मैंने ये किया था. And the Lord is thinking, और प्रभु कह रहे हैं what? क्या? I don't remember. मुझे याद नहीं है. What is he saying? क्या कह रहे हैं? It's not a metaphor. ये कहावत नहीं है जो परमेश्वर ने God कही. is not saying a metaphor. परमेश्वर एक कहावत नहीं कह रहा. When he says, I will remember your sins no more, that means he will remember your sins no more. जब वो कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को दोबारा कभी स्मरण नहीं करूंगा तो इसका मतलब वो दोबारा कभी उनको स्मरण नहीं So करेगा. I want to ask you one thing. पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. When God remembers your sins no more, जब why do परमेश्वर- you remember your sins all the time? जब परमेश्वर दोबारा कभी आपके पापों को याद नहीं करता तो आप क्यों हमेशा अपने पापों को याद करते रहते हो? Amen? Are you getting what I'm saying? Man, these Christians, oh God, forgive me. And the Lord says, for और what? मसीह ऐसी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर. और प्रभु कहता है किस लिए? Do you know forgiveness, he forgave once and for all, the Bible says. क्या आप जानते हैं उसकी माफी जो परमेश्वर ने दी, बाइबल कहती है उसने एक बार और हमेशा के लिए माफी दे दी. Forgave once. एक बार ही माफी दे दी. But some people say, oh brother, but that forgiveness is my past sins, brother, not the future sins, brother. फिर कुछ लोग बोलते हैं लेकिन भाई वो माफी तो मेरे बीते हुए कल के पापों के लिए थे, आने वाले पापों के लिए थोड़ी ना थे. Right? है ना, ऐसे ही बोलते I हैं. want to tell you, तो मैं एक बात बताता when हूँ. Jesus died, जब यीशु ने अपना जीवन दिया, he died 2,000 years before you were born. आपके पैदा होने से 2000 साल पहले दिया. So that time when he released forgiveness, he had to release forgiveness for the future. तो जब उस समय उसने उस माफी को दे दिया तो आने वाले दिन भविष्य के लिए सारे दिनों के लिए दे दिया. Jesus did not get crucified the day you received him. He was crucified 2018 years before. यीशु उस दिन क्रूस पर नहीं चढ़ा जिस दिन आपने उसको ग्रहण किया, लेकिन आपके पैदा होने से कई 2000 साल पहले ही वो क्रूस पर चढ़ा था. Amen. Are you getting, church, what I'm saying? That's why it's very important for you to understand what the Lord has done. Many people preach as if the cross doesn't exist. इसीलिए जरूरी है कि आप समझें कि प्रभु ने किया क्या है. बहुत से लोग ऐसे प्रचार करते हैं मानो क्रूस कभी हुआ ही नहीं. John 1:17. यूहन्ना 1:17. Open your Bibles to John chapter 1 verses अपनी बाइबल 17. यूहन्ना 1 उसका 17 पे खोलें. If you will only hear the word carefully. अगर आप केवल ध्यान से वचन को सुनेंगे, If you will only hear the word carefully. अगर केवल आप ध्यान से वचन को सुनेंगे, The way you live your life is going to change. तो जैसे अपनी जिंदगी आप जीते आए हैं वो बदल जाएगा. Amen. All right. John 1:17, it says, "For the law was given through Moses." और बाइबल कहती है क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई. I want you to underline was given. मैं चाहता हूं आप उसको अंडरलाइन कर ले जहां लिखा है कि दी गई थी या दिया गया When था. you give something, जब आप कुछ देते हैं so you can give something and send it to someone who is far away. तो जब आप किसी को कुछ देते हैं तो कोई दूर दराज भी क्यों ना उसको देकर भेज सकते हैं. For example, I give my watch to Neha and I say, Neha, in Gurgaon there is a guy, give him my watch. जैसे मैंने नेहा को अपनी घड़ी दी और कहा कि गुड़गांव में एक भाई है उसको मेरी घड़ी दे देना. God, the law was given through Moses. व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, But लेकिन grace अनुग्रह and truth और सच came through Jesus Christ. यीशु के द्वारा आए. It was not given. वो दिए नहीं गए. Grace and truth came through Jesus Christ. अनुग्रह और सच्चाई वो सत्य यीशु के द्वारा आए. Law was given from far, वो जो व्यवस्था थी वो दूर से दे दी गई, but grace and truth came with Jesus. लेकिन अनुग्रह और सच्चाई सत्य वो यीशु के Guys, are साथ you getting what आए. I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? And the amazing thing is, और अद्भुत बात तो ये है, some people say, you know what? We preach truth, brother. We preach truth. कई लोग कहते हैं कि भाई हम सच्चाई का, हम सत्य का प्रचार You करते हैं. preach grace. We preach truth. तुम अनुग्रह प्रचार करते हो, हम सच्चाई का प्रचार करते हैं. We have to read the Bible. हमें बाइबल पढ़नी पड़ेगी. Bible never says truth and law was given through Moses. बाइबल कभी ये नहीं कहती कि मूसा के द्वारा व्यवस्था और सच्चाई दी गई. I want to tell you, truth is not in the side of the law. Truth stands on the side of grace
मैं ये Amen? बता देना चाहता हूँ वो जो सत्य है परमेश्वर की सच्चाई वो व्यवस्था के साथ नहीं खड़ी लेकिन वो अनुग्रह के साथ खड़ी है. The truth came through Jesus. वो सत्य वो सच्चाई यीशु के द्वारा आए. That means there are many things in law that you have believed about God, but they are not true. इसका मतलब बहुत सी बातें व्यवस्था में हैं जो आपने परमेश्वर के बारे में सच मानी लेकिन वो सच नहीं है. Amen? You know, Jesus is talking to these Jews, यीशु यहूदियों से बात कर रहे हैं, not talking to Christians. मसीहों से नहीं. He's talking to Jews. वो यहूदियों से बात कर And रहे he's हैं telling these Jews, और उनसे पूछते हैं, he said, I will tell you the truth. If you be my disciples, if you abide in these teachings, you shall be my disciples. यीशु उनसे कहते हैं अगर तुम मेरी इन शिक्षाओं में बने रहो तो मेरे चेले ठहरोगे. Then I will tell you the truth, तब मैं तुम्हें सच बताऊंगा and truth will set you free. और वो सच तुम्हें आजाद कर देगा. And these Jews और ये know यहूदी- Torah very well. और ये यहूदी वो थे जो तोरा को रटे हुए थे. They were fasting twice a week, वो हफ्ते में 2 बार 3 बार उपवास क्या करते थे? washing their hands on all the ceremonies they were performing. सारी रीति रिवाजों में अपने हाथों को पाँव को धोया करते हैं तो And शुद्ध to करते हैं. these Pharisees, Jesus is telling them, I am going to tell you the truth, and truth will set you free. और इन फरीसियों से यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें सच बताऊंगा और वो सत्य ही तुम्हें आजाद करेगा. Amen? Are you getting what I'm saying? In the old covenant, पुरानी वाचा में you don't find the truth. आपको वो सच्चाई नहीं मिलती. If you think you're preaching judgment and wrath and you're thinking you're preaching the truth, you're highly mistaken. अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर के दंड और उसके न्याय का प्रचार करते हुए सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर That's रहे why हैं. the disciples, when they went to Samaria and they did not receive the gospel, they came to Jesus. They said, "Oh, let us call fire from above." इसीलिए जब चेले यीशु के साथ समरिया गए और उन्होंने सुसमाचार को ग्रहण नहीं करा तो चेलों ने कहा प्रभु आग गिरा दें. And they were thinking Jesus would say, "My man, और so amazing." उनको लगा था कि यीशु बहुत खुश हो जाएंगे, बोलेंगे वाह बेटा मजा आ गया. Wow. Just you have read Kings, you have read about Elijah. I'm so happy. और यीशु ने वो सोचते थे यीशु कहेंगे कि वाह तुमने राजाओं की पुस्तक पढ़ी है, एलिया के बारे में पढ़ा है. But Jesus, Bible says, rebuked them. लेकिन बाइबल कहती है यीशु ने उनको डांट लगाई And he said, "You do not know which spirit you are of. और कहा कि तुम्हें नहीं पता तुम किस आत्मा के हो. Because the Son of Man has not come to destroy lives, but the Son of Man has come to save lives." और कहा कि मनुष्य का पुत्र जीवनों को नाश करने नहीं लेकिन जीवनों को बचाने के लिए आया है. Amen? We have to repent. हमें मन फिराना आवश्यक है. But repent does not mean, "Oh God, forgive me." लेकिन वो मन फिराना वो पश्चाताप नहीं, वो रोना बिलकना नहीं. I was just sitting and thinking, if repentance means saying sorry and feeling terrible about what you have done, then Judas repented. मैं इस बारे में सोच रहा था अगर वो पश्चाताप जिसको हम समझते हैं अगर वो ये है कि हम गिड़गिड़ाएं रोएं और अपनी गलती के लिए माफी मांगे तो फिर यहूदा ने भी अपनी गलती की माफी मांगी थी. Because after he did that, he felt miserable. क्योंकि उसने जब यीशु को धोखा दिया उसके बाद उसको बहुत बुरा लगा. In fact, he came back and gave the money back to the priest. यहाँ तक कि उसने वापस आकर के वो 30 चांदी के जो टुकड़े थे वो भी लौटा दिए But महायाजक को. still, he did not repent. फिर भी उसने मन नहीं फिराया. Because if he would have repented, he would have seen the nature of Father. If he would have seen the nature of Father, he would have not committed suicide. क्योंकि अगर उसने मन फिराया अपना दृष्टिकोण बदला होता मन फिराया होता तो वो परमेश्वर की भलाई को जानता और वो आत्महत्या ना करता. Amen? Guys, are you getting what I'm saying? So that's why I want to tell you about generational blessings today. इसीलिए आज मैं आपको पीढ़ी दर पीढ़ी की आशीष के बारे में बताना You चाहता have हूँ. heard about generational curses for years. आपने सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप के बारे में सुना है. Today is the time to hear about generational blessings. आज समय है पीढ़ी दर पीढ़ी की आशीष के बारे में सुन लीजिए. Amen? You know what is amazing thing about blessing? आप जानते हैं आशीष के बारे में सबसे बढ़िया बात क्या है? Blessings and struggle cannot stay together. आशीष और स्ट्रगल्स संघर्ष आशीष और संघर्ष साथ साथ नहीं रह सकते. The day you come under the blessing, struggles cease in your life. जिस दिन आप परमेश्वर की आशीष के अधीन आ जाते हैं संघर्ष आपकी जिंदगी से बंद हो जाते हैं. Amen?
The day I came under the blessing, struggles ceased in my life. जिस दिन मैं उस आशीष के अधीन आ गया, संघर्ष मेरे जीवन में रुक गया. You know, one of the biggest misconception we have heard it, people think, oh, everyone struggles. और सबसे बड़ी जो गलत बात हमने सुनी है कि वो ये है कि हर एक को संघर्ष करना पड़ता है जीवन में. That's not true. ये सच नहीं है. No, not everyone struggles. हर कोई संघर्ष नहीं करता. Hello? क्या Are आप you सुन guys रहे हैं? alive? आप जीवित Are you हैं? hearing what I'm saying? सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? When blessings start to operate in your life, struggles cease in your life. जब परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आती है तो संघर्ष को बंद होना पड़ता है. I know there are some people, I can read your mind, you're saying, but the Bible says, Jesus said, in this world you will have troubles. और कुछ लोग कह रहे हैं कि लेकिन यीशु ने कहा है इस दुनिया में तुम्हें समस्याएं आएंगी. Yes, हाँ, but he did not say, in this world you'll have troubles, full stop. लेकिन उसने ये नहीं कहा कि समस्या आएंगी और बात In वहीं this world बंद. you'll have troubles. So कि इस दुनिया में तुम्हें समस्या आएंगी, ठीक है? just deal with it. तो झेल लेना. No, that's not what he says. उसने ये नहीं You कहा. have to understand what he's saying. आपको समझना He जरूरी है says, उसने in क्या this कहा. world you're going to have troubles, उसने कहा इस दुनिया में तुम्हें समस्याएं but आएंगी, be of good courage, लेकिन धाड़स बांधो, because I have overcome the world. हिम्मत रखो क्योंकि मैंने इस दुनिया पर जय पाई है. Because I have overcome the world, और क्योंकि मैंने दुनिया पे जय पाई and now I live in you, और अब मैं तुम में जीता हूँ, you are going to overcome every struggle that comes against your life. तो तुम हर एक उस संघर्ष पे जयवंत होगे जो तुम्हारे विरोध में आता है. Amen? Are you getting what I'm saying? Yes, the enemy will come against us. हाँ, दुश्मन हमारे खिलाफ आएगा, But according to the Bible says when we submit to God, resist the enemy, he has to flee. लेकिन बाइबल के मुताबिक जब हम परमेश्वर के अधीन अपने जीवन को समर्पित करेंगे, शैतान का सामना करेंगे, उसको भागना ही पड़ेगा. Don't tell me from last 10 years Satan is after you and he's not fleeing from your life. मुझसे ये मत कहना कि पिछले 10 साल से शैतान तुम्हारे पीछे पड़ा है और तुम्हारे जीवन को छोड़कर भागा नहीं है. Oh brother, what to do? Struggles, brother. भाई, Struggles. क्या करे भाई, इतनी समस्या है. No. नहीं नहीं. The Bible says in 1 John chapter 4, anyone who is born of God overcomes this world. पहला यूहन्ना चौथा अध्याय कहता है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो इस पृथ्वी, इस भूमि पर, इस दुनिया पे जय पाता है. Amen. Are you getting what I'm saying? I'm telling you, I never struggled in ministry. मैं बता रहा हूँ मैंने सेवकाई में कभी भी संघर्ष नहीं किया. Not joking. The people who मजाक are नहीं around कर me, रहा. you can ask them. जो We लोग have मेरे never आसपास हैं, struggled. उनसे You know पूछो. what? We have never even went to street to distribute a tract. हम कभी सड़क पर उतरे भी नहीं कि हम किसी को ट्रैक्स बांटें. I'm not saying that's wrong. मैं ये नहीं कह रहा कि वैसा करना गलत I है. would rather preach the gospel to a person one to one. लेकिन मैं पसंद करूंगा कि मैं किसी के आमने सामने उसको सुसमाचार What सुनाऊं. I'm saying is, मैं ये कह रहा हूँ the growth in this ministry इस सेवकाई में जो बढ़ोतरी आई है has been effortless. वो बिना हमारे संघर्ष, बिना हमारी मेहनत के आई है. We have been planting churches in different places. It has been effortless. हमने अलग अलग जगहों पे कलीसियाओं की स्थापना की, वो बिना मेहनत के की. And the finances in our life, they are effortless. और जो हमारे जीवन में आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है हमारे जीवन की, वो भी बिना संघर्ष की है. Because the blessings क्योंकि परमेश्वर की आशीष, will make struggles cease in your life. क्योंकि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में संघर्ष को रोक देगी. Are you getting what I'm saying? But blessing has such a bad reputation in the church. लेकिन आशीष की इतनी बुरी छवि है कलीसिया में. If you preach about blessing, you're a prosperity preacher. अगर आप परमेश्वर की आशीषों के बारे में सिखाएंगे तो आप समृद्धि के प्रचारक Are हैं. you hearing what I'm saying? If you preach about blessing, you're a prosperity preacher. अगर आप समृद्धि के बारे में सिखाते हो तो समृद्धि के प्रचारक हो. But if you preach about curses, you're an anointed preacher. लेकिन अगर श्राप के बारे में सिखाते हो तो अभिषिक्त शिक्षक हो. Give me a break. माफ कीजिए मुझे, That's not true. ये सच नहीं है. Some people say, oh, this guy is always talking about blessing, blessing, blessing. Hey, who started it? God started it in the Garden of Eden. Blame him. He's the first one who preached that message, not me. कुछ लोग कहते हैं कि ये आदमी हमेशा परमेश्वर की आशीषों के बारे में बात करते रहता है. मेरी गलती नहीं है, परमेश्वर से बात कर लीजिए. पहला वो था जिसने अदन में आशीषों की शुरुआत की थी. Genesis chapter 1 verses 28. उत्पत्ति 1 उसका 28. Guys, are you alive? Okay. You know what blessing does in your life? क्या आप जानते हैं आशीष आपके जीवन में क्या It करती है? makes you stand out among the crowd. वो आपको भीड़ में से अलग कर देती है. I'll say it again. मैं दोबारा कहूंगा, The blessing परमेश्वर की will make you आशीष stand out
of the crowd. आपको भीड़ में अनोखा बना देगी, अलग बना देगी. I want to tell you the power of blessing today, the day that when you understand it, man, it's powerful. मैं आपको उस आशीष की सामर्थ्य आज बता देना चाहता हूँ. जिस दिन आप ये समझ गए, ये बहुत सामर्थ्य है. Okay, are you there? Yes. Okay, let's see it. Then God, oh, prosperity God. What prosperity God? He's blessing them. और फिर परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर उनको आशीष दी. ये समृद्धि परमेश्वर है जो समृद्धि की बातें करते रहता है. God, why did you bless them? परमेश्वर क्यों आपने उनको आशीष दी? And kept them in the Garden of Eden. और उनको अदन की वाटिका में रखा. You could have kept them in wilderness. उनको जंगल में क्यों नहीं रखा, सुनसान में? One of the famous teachings. ये बहुत ही लोकप्रिय शिक्षा है ईसाइयों में. I am in the wilderness, brother. भाई मैं उस मरुस्थल में हूँ, मरुस्थल में. I don't even know what that means. मुझे पता भी नहीं इसका मतलब क्या होता है. Because when they are saying, when Holy Spirit took Jesus to wilderness, the Holy Spirit took Jesus to a physical wilderness where he can fast and pray. क्योंकि जब पवित्र आत्मा यीशु को मरुस्थल में जंगल में लेकर के गया तो वो एक वास्तविक शारीरिक जंगल था जहां उसको लेकर गया. If that is what you are saying, that you are staying in a desert, okay. अगर आप मुझसे ये कह रहे हैं कि आप एक रेगिस्तान में रहते हैं, आपका घर है रेगिस्तान में, तो ठीक है, समझ में आता है. But if you are telling me that you are feeling low, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि आप निराश महसूस कर रहे हैं, brother, I am in wilderness. भाई मैं उस रेगिस्तान में हूँ. No, that's not wilderness. ये वो मरुस्थल नहीं है. Your mind has to renew according to the word of God. आपके दिमाग का, आपकी सोच का बदलना जरूरी है Let me परमेश्वर tell के you वचन something. के मुताबिक. मैं कुछ Are you बताता ready? हूँ. In Christ, मसीह में there is no wilderness. कोई सुनसान, कोई जंगल, कोई रेगिस्तान नहीं है. You know, Jesus said, when a person casts out demonic spirit, they go to wilderness, not God's children. यीशु ने कहा, जब किसी में से दुष्ट आत्मा को निकालो तो वो ऐसे सूखे स्थानों में, ऐसे रेगिस्तानों में जाते हैं. Hey, परमेश्वर की church, औलाद are you नहीं. getting what I'm saying? क्या आप सुन रहे हैं? The Lord is my shepherd. यीशु मेरा चरवाहा है, I shall not want. मुझे कोई घटी नहीं होगी. He leads me in the wilderness. और वो मुझे रेगिस्तान में ले जाता है. Oh, he leads me in the wilderness. वो मुझे मरुस्थल में ले जाता है. This is Pharisee International Version. ये फरीसियों का अंतरराष्ट्रीय वर्षन. No. He does जी not नहीं. lead us in the wilderness. He leads us in green pastures. जी नहीं, वो हमें जंगल में, मरुस्थल में, रेगिस्तान में नहीं लेकर के जाता, लेकिन हरी हरी चराइयों में ले जाता है. Amen? If you are a sheep, अगर आप उसकी भेड़ हो, that means he leads you to abundance. इसका मतलब वो आपको बहुतायत में लेकर जाता है. Amen? Abundance is the plan of God for its children. बहुतायत ही परमेश्वर की योजना है अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए. There is no wilderness in Christ. मसीह में कोई मरुस्थल नहीं है. There is no wilderness in Christ. मसीह यीशु में कोई मरुस्थल The नहीं है. Bible says in 1 Corinthians 6:17 that he who is joined to the Lord has become one spirit with him. When you are one spirit, where is wilderness? पहला कुरिन्थियों 6:17 कहता है, जो कोई मसीह के साथ जुड़ गया वो उसके साथ एक आत्मा हो गया है. जब आपकी आत्मा यीशु के साथ एक हो गई तो कहाँ रहा जंगल और कहाँ रहा रेगिस्तान. We tell you earthly things and you don't get. What will you do when we'll tell you heavenly things? हम आपको दुनिया की बातें बता रहे हैं, आप नहीं समझ रहे. अगर स्वर्ग की बातें बताएंगे तो क्या करेंगे. These teachings have been passed down through generations and people just receive them. कई सदियों से ये शिक्षाएं चलती आ रही हैं और लोग उनको सीखते और मानते आ रहे हैं. Guys, people who believe in the Bible, show me your hand. जो लोग बाइबल को सच मानते हैं अपने हाथ उठाएं. Are you sure? Okay, so Sam, come here. So the Bible says in Ephesians 1 and Ephesians 3 that we are seated with him in the heavenly places. इफिसियों 1 इफिसियों 3 में लिखा है कि हम यीशु मसीह के बगल में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं. How many people believe that? कितने लोग ये मानते हैं? Are you sure? पक्का? That you are seated with Christ in the heavenly places? पक्का आप यीशु के साथ स्वर्ग में बैठे हो? So Jesus asks you, how are you? So यीशु पूछते हैं कैसे हो भाई? In wilderness. जंगल में हूँ. Oh, I am seated in heavenly places, brother, but I am in wilderness. ओ भाई मैं स्वर्ग में तो बैठा हूँ लेकिन मैं जंगल में हूँ. Your mind needs renewal to what Jesus has done in your spirit.
आपके मन का, आपकी मानसिकता का नया होना जरूरी है उस सच के मुताबिक जो यीशु ने आपके साथ कर दिया। Amen? Some people say, oh brother, कुछ लोग कह रहे भाई, oh hallelujah. ओ भाई, Just ask, God will just give you what you need. परमेश्वर तुम्हें उतना ही देगा जो तुम्हारी जरूरत है, That's it. उतना ही। Well, then God confuses me तो फिर परमेश्वर मुझे परेशान करता है, हैरान करता है, because God puts Adam and Eve in the Garden of Eden. क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा। 2 people. 2 लोग। How many? कितने? 2 लोग। One apple tree they would have survived in एक one सेब apple. के पेड़ में वो खूब मस्त जिंदा रहते, Right? है ना? But the Bible says there were thousands of trees. लेकिन बाइबल कहती है अनगिनतों पेड़ परमेश्वर ने लगाए वहां पे। Why? क्यों? And even in that, और उसमें भी today if you see, अगर आज आप देखेंगे there are thousands of varieties of apples. कितने प्रकार के तो सेब ही हैं सिर्फ। Why God? क्यों प्रभु? Just gave us, you would have given us one apple. एक ही तरह का सेब देते। Why did you have to give green apple and red apple and हरा this और apple and लाल that और apple? अलग अलग सेब क्यों दिए प्रभु? And now this apple? God is a God of abundance. परमेश्वर बहुत आयत का परमेश्वर है। Everyone who wants abundance, come on, lift up your hand जिसको and say, बहुत I आयत चाहिए अपने receive हाथों it. को उठाएं। Abundance is the will of God for His children. हद से ज्यादा परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। Not what you need. उतना नहीं जो थोड़े में जिंदगी कट जाए। Say abundance. बोले बहुत आयत, Say abundance. बहुत आयत। That is what Garden of Eden was. Abundance. यही है जो अदन की वाटिका थी, बहुत आयत, हद से ज्यादा। There was abundance. जरूरत से बहुत ज्यादा था वहां। But the day Adam and Eve fell and they were sent out of the garden, they came from abundance to lack. लेकिन जिस दिन आदम और हवा अदन की वाटिका से बाहर कदम रखे, वो बहुत आयत से कमी में कदम रखे। Amen? So what happened? क्या हुआ? In the garden, उस वाटिका में God was Adam's provider. परमेश्वर उसका चरवाहा था। When he came out of the garden, जब वो बाहर आ गया, he became his own provider. तो वो अपना खुद का चरवाहा ठहरा। If you are your own provider, it's a curse. अगर आप अपने खुद के चरवाहे हैं, अपना खुद के रखने वाले हैं, तो ये एक श्राप है। The Lord is my shepherd. नहीं, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। You are not your provider. आप अपने चरवाहे नहीं हो। I said you are not your provider. मैंने कहा आप अपनी जरूरतों को पूरे करने वाले The नहीं हो। Lord is your provider. वो परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करता है। Amen. The day you will get this revelation, you will start bursting forth into prosperity. जिस दिन आप इस प्रकाशन को पा गए, इसको जान गए, आपकी जिंदगी में हर जगह समृद्धि आने लग जाएगी। Amen. Are you getting what I'm saying? The Lord began to teach me this. प्रभु मुझे ये सिखाने लगे। And He told me prosperity is not the amount of money in your account. और उसने मुझसे कहा कि समृद्धि वो मात्रा नहीं है कि कितने पैसे तुम्हारे अकाउंट में हैं। No. You can live your life stingy and save some 10, 15, 20 lakhs in your account. आप कंजूस जिंदगी जी करके 10, 15, 20 लाख रुपए अकाउंट में जमा करके जी सकते हो। You are not prosperous. आप समृद्ध नहीं हो। लेकिन फिर Do you want to hear what prosperity आप is? जानना चाहते हैं समृद्धि क्या है? Prosperity is the continuous flow. समृद्धि है जब उसका जो हमारा चरवाहा है उसका नियंत्रण हमारे जीवन में प्रवाह चलता रहे। Yeah, the continuous flow. Like a river. वो प्रवाह एक नदी की तरह चलता रहे हमारे जीवन में। Like a एक river. नदी की तरह। River. The river, if you take out a glass of water from river, does it dry up? अगर नदी में से एक गिलास पानी निकालोगे क्या सूख जाएगी? No, the continuous flow. Now people have started to come from Burari, and Raju was sharing testimonies how God is now bringing people out of their debts, because that's what will happen when you'll start coming under the blessing. और बुराड़ी से कुछ लोग आ रहे हैं और राजू मुझे बता रहा था गवाहियां कैसे परमेश्वर इन लोगों को उनके कर्जों से निकाल रहा है। और यही होता है जब आप उस कमी से जब आप परमेश्वर की बहुतायत में कदम रखते हैं। Me and Monica, we were saved, we loved the Lord, we were doing everything, but still we were in debts. मैं और मोनिका हम परमेश्वर से प्यार करते थे, हम सब कुछ सही कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम कर्जों में थे।
Because my mind was not renewed. क्योंकि मेरा मन नया The नहीं word of हुआ God. था Because परमेश्वर के वचन के I had मुताबिक। heard teaching that God gives us sicknesses, He will take us through valleys. क्योंकि मैंने ये शिक्षा पाई थी कि परमेश्वर हमें बीमारियां देता है, वो हमें खाइयों में से लेकर जाता है। I mean, like, I have never read this scripture in the Bible. You are a city set on the valley. मैंने कभी भी ये वचन बाइबल में नहीं पढ़ा कि तुम खाई में रखे गए शहर हो। How many people have read that? कितने लोगों ने पढ़ा अपनी बाइबल में ये? But the Bible says you are a city set upon a hill. लेकिन बाइबल Mountain. कहती है कि तुम पहाड़ पर रखे गए एक शहर हो। Guys, you're not getting it, man. No, I feel that. I feel that. They're getting there. It will take some time. समय लगेगा, आएगा, Coming आएगा, here. आएगा, आएगा, आते रहो। Keep hearing the word. वचन को सुनते रहो। हम आपसे ज़्यादा ज़िद्दी हैं. We are more stubborn than you. Amen? We are going to break all the legalistic lies that you have heard over the years. उन सारे धार्मिक सुझाव देने वाले झूठों को हम तोड़ देंगे जो आप सालों से सुनते आ रहे हैं। And let me tell you, whether you like it or not, people will start seeing blessings in your life. आपको पसंद आए या ना आए, लोग आपकी जिंदगी में आशीष देखने लग जाएंगे। Amen? You know what happens when blessings come? अब जानते हैं क्या होता है जब आशीष आती है जीवन में? In the amplified version, the blessings are called to be envied. एम्पलीफाइड वर्जन में आशीष को लिखा है जिससे जलन की जा सके। Are people envying you? क्या लोग आपके समृद्धि से जलन Speaking करते bad हैं? about you? आपकी उस समृद्धि के बारे में बुरी Oh, बातें कहते हैं? hallelujah, it is because I am blessed. वो इसीलिए क्योंकि मैं आशीषित हूँ। The Bible says blessings means to be envied. बाइबल कहती है आशीषित होने का मतलब है जिससे जलन की जा सके। जैसे उसको दे दिया मुझे नहीं दिया, उसमें हीरे जड़े हैं क्या? वो तो उतना उपवास भी नहीं करता जितना मैं करता हूँ, राइट? अरे बोलो। अच्छा, guys, are you getting what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं? You have to become blessing conscious, not curse conscious. आपकी मानसिकता आशीषित हो जानी जरूरी है। वो आशीष की मानसिकता, आशीष के बारे में सोचने वाली मानसिकता हो जानी जरूरी है। Let me tell you what blessing means. मैं आशीष का मतलब बता देना चाहता हूँ पहले। Hallelujah. Okay, Genesis 1:28. उत्पत्ति 1:28। Genesis 1:28. We'll go back. Okay, Genesis 1:28. उत्पत्ति 1:28। Hallelujah. Then God blessed them. The first thing that God did was when He made Adam and Eve was He blessed them. जो पहला काम परमेश्वर ने आदम और हवा के साथ किया उनको बनाने के बाद वो था उनको आशीष दी। And then He said, "Be fruitful and multiply." और फिर कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। So God said, "Be fruitful and multiply." परमेश्वर ने कहा फूलो फलो पृथ्वी पे भर जाओ। Because without blessing, you क्योंकि- cannot be fruitful and you cannot multiply. क्योंकि परमेश्वर से आशीष पाए बिना कोई फलवंत नहीं हो सकता, बढ़ नहीं सकता। See, any area of your life where there is no growth, it has to come under the blessing, because the day it comes under the blessing, there will be fruitfulness and there will be multiplication. आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र जहां पे बढ़ोतरी नहीं है, उसको परमेश्वर की आशीष के अधीन आ जाना जरूरी है, और उसके अधीन आते ही वो फलवंत होने लगेगा और कई गुना बढ़ जाने लगेगा। Amen? That's what Jesus said. If you abide in me, you're going to bear much यही fruit. है जो यीशु ने कहा, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत फलवंत होगे। Amen? Say this after me. I am blessed मेरे साथ बोले, मैं आशीषित हूं to be fruitful कि मैं फलवंत हूं and I will multiply. और मैं बहुत गुना बढ़ता रहूंगा। Lord, I decree, I declare that every person who is hearing my voice today, let the blessings of the Lord bring fruitfulness and multiplication in their life in the mighty name of Jesus Christ. प्रभु, मैं ये घोषणा करता हूं कि जो कोई मेरी आवाज को सुन रहा हो, उसके जीवन में परमेश्वर आप
बहुत फलवंत होने के लिए उनको आशीष दे प्रभु। Amen. The day you start walking in the blessing, जिस दिन आप आशीष में जीने लग जाते हैं, many times you won't notice it, but the others would. कितनी बार आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन दूसरे लोग देखने लग जाएंगे The उसको। people will start seeing you. There is something about this guy. लोग आपको देखेंगे इसके बारे में कुछ तो अलग है। A ministry cannot flourish without the blessing. एक सेवकाई फलवंत नहीं हो सकती आशीष के बिना। And let me tell you, even the blessing of a father, it's so powerful in the Bible. और यहाँ तक कि एक पिता की आशीष बाइबल में जो दिखाई गई वो इतनी सामर्थी है। We see how two brothers are fighting to get the blessing of the father. हम देखते हैं कैसे दो भाई आपस में लड़ रहे हैं परमेश्वर की आशीष पाने के But लिए। in today's culture, लेकिन आज का जो माहौल है उसमें it has just become a statement, God bless you. वो सिर्फ एक कहावत बन गई है कि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। Oh man, God bless you is powerful. परमेश्वर तुम्हें आशीष दे देगा तो बहुत बड़ी बात है, He has made us priest. क्योंकि उसने हमें याजक बना दिया है। Amen. There was a guy, his mom brought him. He was not very sharp in studies. This is the first time it happened with me. एक बच्चे को उसकी माता मेरे पास लेके आई, मेरे साथ पहली बार हुआ। वो बच्चा बहुत ज़्यादा सयाना या समझदार नहीं था पढ़ाई में। And she said, he's not very sharp. और उन्होंने कहा ये इतना अच्छा नहीं है, He's struggling. और बहुत समस्या होती है इसको Would पढ़ाई you में। pray for him? क्या आप इसके लिए प्रार्थना And करोगे? I'm thinking, Lord, what should I pray? और मैं कह रहा हूँ मैं क्या प्रार्थना करूँ प्रभु? I said, okay, I'll say some good words. मैंने बोला ठीक है, कुछ अच्छी बातें कह देता हूँ। I closed my eyes. मैंने आंखों को बंद किया The moment I closed my और eyes, जैसे ही आंखों को बंद किया I started seeing myself wearing the robe of a priest. मैं अपने आप को देखने लगा एक याजक के कपड़ों में। And the Lord said, और प्रभु ने कहा release the blessing. आशीष को खोल, Release the blessing. आशीष को उंडेल दे। And I'm telling you, after some time, you'll see that kid. और मैं आपको बता रहा हूँ कुछ समय बाद आप उस बच्चे को देखेंगे। When blessing comes on your life, man, the world will see it. जब परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पे हो तो दुनिया उसकी गवाही देगी। Amen? And see it in the Bible. और इसको बाइबल में Jacob calling his 12 sons. याकूब अपने 12 बेटों को बुलाता है। Okay, guys, hear carefully. ध्यान से सुनिएगा। It's not just he was saying nice words to those guys. सिर्फ इतना नहीं कि ताकि उनको बुला के अच्छी अच्छी बातें कहे उनसे। To Judah, यहूदा से he said, उसने कहा, Judah, यहूदा, the scepter shall never leave Judah. वो राजदंड कभी तुझसे अलग नहीं होगा। He gave kingly blessings to Judah. उसने राजकीय आशीष यहूदा को दी। Now hear carefully. ध्यान से सुने। Because of that blessing, उस आशीष के कारण Jesus had to come through the house of Judah. यीशु को यहूदा के ही खानदान से आना पड़ा। Are you getting what I'm saying? Because for Jesus it was prophesied that scepter will never leave his hand. Jesus, his kingdom will be eternal kingdom. क्योंकि यहूदा के लिए जो भविष्यवाणी थी वो यीशु के लिए की गई कि कभी भी राजदंड उससे छीना नहीं जाएगा, हमेशा उसके हाथ में ही राज्य होगा। Saul was made king, सौल राजा बनाया गया, was not from Judah. लेकिन वो यहूदा के गोत्र का नहीं था। Saul had to go so that David can come. The power of blessing. When your father blesses you, no one can come above you. That is how God has declared it. और शाऊल का जाना जरूरी था ताकि दाऊद आ सके, और क्योंकि जब परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पर है तो कोई आपको उससे अलग नहीं कर सकता। That's what this generation doesn't get. यही Our है। generation does not get honor. यही है जो हमारी पीढ़ी को समझ में नहीं आता, आदर समझ में नहीं आता। आदर क्या होता है? Do you know what is the power of honor? क्या आप जानते हैं आदर का क्या सामर्थ्य है आदर में? Bible says, बाइबल कहती है honor your father and mother अपने माता पिता का आदर कर so that you can live long. ताकि तू लंबी जिंदगी जिए। Honor has the power to defeat death. आदर में वो सामर्थ्य है कि आपके जीवन में मृत्यु को हरा देता है। I said honor has the power to defeat death. आदर में वो सामर्थ्य है कि वो आपके जीवन से मृत्यु को हरा देता है। If a person just starts honoring his mother and father, अगर कोई व्यक्ति केवल अपने माता पिता का आदर करना शुरू करे man, death will have no power over you. तो मृत्यु का उनके जीवन पे कोई राज्य नहीं The होगा। Bible says it. I'm not saying it. बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। Are you getting what I'm saying?
Blessings are powerful. आशीष से सामर्थ्य होती हैं। Amen. Ephesians 1:3. इफिसियों 1 उसका 3। Ephesians 1:3. It Ephesians says, 1:3. "Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places." Where? In Christ. वो कहती है यीशु मसीह के पिता और हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीष दी है स्वर्गीय स्थानों में। Okay, for example, guys, उदाहरण के लिए this phone ये फोन, is in this notebook now. ये मैंने इसको इस नोटबुक में रख दिया। When I lift this notebook, जब मैं इस नोटबुक को उठाता हूँ the phone gets lifted up. तो फोन भी ऊपर उठाया जाता है। When I bring it down, जब मैं इसको किताब को नीचे लाता हूँ the phone comes down. फोन भी नीचे लाया जाता है। In the same manner, वैसे ही we are in Christ. हम मसीह के अंदर हैं And no one has the power और to किसी में ये बल dethrone नहीं, Jesus. किसी में ये सामर्थ नहीं कि यीशु को उसकी You are गद्दी से उतार seated सके। with Christ Jesus in the heavenly places. आप यीशु के साथ सिंहासन पर बैठे हैं स्वर्ग में। No one can displace you from your position in Christ. कोई भी आपको यीशु में जो आपका स्थान है उससे अलग नहीं कर सकता। Every blessing हर एक आशीष is in Christ. मसीह में है। Every blessing हर एक आशीष is in Christ. वो मसीह में है। When I come in Christ, जब मैं मसीह में आ गया I become a partaker of that blessing. तो जो कुछ आशीष यीशु में है मैं उसका हिस्सेदार बन गया। Amen? Okay, Galatians 3:13. गलातियों 3 उसका 13। Galatians 3:13. गलातियों 3:13। The Bible says Christ has redeemed us from the curse of the law. बाइबल कहती है कि यीशु ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। Guys, are you alive? क्या आप जीवित हैं? What is law? व्यवस्था क्या है? When you do good, जब आप सही करोगे good will happen. अच्छा मिलेगा, When you do bad, बुरा करोगे bad will happen. बुरा होगा। That's how many preachers are preaching. If you don't give your tithes, curse will come on you. और यही है जो बहुत से प्रचारक आज भी सिखा रहे हैं कि अगर तुम अच्छा नहीं करता, अगर तुम दशवांश नहीं दोगे तो श्राप आएगा। That's a nonsense from the pit of the hell. ये नरक से निकला हुआ कचरा है। We don't give tithe and offering so that we won't be cursed. हम दशवांश और भेंट इसलिए नहीं देते कि नहीं तो श्राप आएगा। No. We give it because we love the Lord and we want to see His kingdom expand and go everywhere. वो हम इसीलिए देते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसके राज्य को हर एक कोने में देखना चाहते हैं। Christ has redeemed you from the curse of the law. क्योंकि यीशु ने आपको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। Amen? So that the blessings of Abraham, ताकि अब्राहम की आशीष, generational blessing I'm talking about now. मैं अब पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली आशीष की बात कर रहा हूं, So that the blessings of Abraham might come upon Gentiles. ताकि अब्राहम की आशीष अन्य जातियों पर आ सके। I always used to think, what is the blessing of Abraham? मैं हमेशा सोचता था ये अब्राहम की आशीष है क्या? Some people say receiving the Spirit. कुछ लोग कहते थे कि आत्मा में उसको ग्रहण किया जाता है। Oh well, Abraham was not filled with the Holy Spirit. तो इसका मतलब अब्राहम तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं था। What is the blessing of Abraham? फिर अब्राहम की आशीष क्या है? If you read the book of Romans, you will see that Bible always talked about that Abraham believed God and it was accounted to him as righteousness. अगर आप रोमियो की पुस्तक में पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है कि अब्राहम ने परमेश्वर पे भरोसा किया, उसका विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता माना गया। The blessings of Abraham is the righteousness that comes through the Holy Spirit. अब्राहम की जो आशीष थी वो धार्मिकता थी जो पवित्र आत्मा के द्वारा आती है। Romans 4:13-14. रोमी 4 Guys, 13 और 14। If you will not draw it out of me, I cannot release it. अगर आप मुझसे उसको हासिल नहीं कर सकते तो मैं वो दे नहीं सकता। If you will not draw it out of me, I will not release it. अगर आप मुझसे उसको खींचेंगे नहीं तो मैं दे नहीं पाऊंगा। You can never force feed people. आप कभी भी जबरदस्ती किसी को खिला नहीं सकते। You know, Jesus told disciples, I have so many things to tell you, but you're not ready. So he didn't tell them. यीशु ने चेलों से कहा कि बहुत कुछ है तुम्हें बताने के लिए मेरे पास, लेकिन मैं नहीं बता सकता, तुम तैयार नहीं हो, इसलिए नहीं बताया। If you're alive, shout a big amen. अगर आप जीवित हैं तो आमेन बोले। Jesus told his disciples, I have so many things to tell you, but because you're not ready, and he didn't tell them. यीशु ने कहा अपने चेलों से कि मेरे पास इतना कुछ है तुम्हें बताने के लिए, लेकिन तुम तैयार नहीं हो, और उसने नहीं बताया। But because Paul was ready, he told him. लेकिन क्योंकि पौलुस तैयार था, यीशु ने उसको बता दिया।
And Paul brings these epistles, और पौलुस इन पत्रियों को लेकर के आता है. wrote 1/3 of the new covenant. नई वाचा का, नई नियम का 1/3 उसने लिख डाला. Amen? The blessings of the Abraham, they are our inheritance. It's generational blessing. अब्राहम की आशीष वो हमारी विरासत है, हमारी मिरास है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली आशीष है. Romans 4:13 and 14. रोमी 4 उसका 13 और 14. What was the blessing? आशीष क्या थी? What was the promise to Abraham? क्या वायदा था अब्राहम को जो दिया गया? But now you see carefully. Guys, are you alive? Okay. ध्यान For से the सुनिए. promise that he would be the heir of the world was not to Abraham. Huh? कि जो वायदा दिया गया अब्राहम को कि वो इस दुनिया का वारिस होगा, वो अब्राहम को नहीं दिया गया था. क्या? God told him, you will be an heir of this world. परमेश्वर ने उससे कहा कि ये दुनिया का वारिस होगा तू. But that promise was not given to Abraham. लेकिन वो अब्राहम को दिया गया वायदा नहीं था. Oh. अच्छा. Or to his seed through the law. या फिर उसके बीज को व्यवस्था के द्वारा. That means even not for Jews. इसका मतलब यहूदियों के लिए भी नहीं था. Guys, are you getting what I'm saying? The promise that Abraham would be an heir of the world was not given to Abraham. ये वायदा कि वो पृथ्वी का वारिस होगा, ना तो अब्राहम को, ना ही उसकी संतान को, उसके बीज को दिया गया. But through the righteousness of faith. लेकिन विश्वास की धार्मिकता के द्वारा. That means when you receive the gift of righteousness by faith, you become the heir of the world. इसका यह मतलब है कि जब आपने विश्वास से परमेश्वर के उस धार्मिकता रूपी वरदान को ग्रहण कर लिया, तो आप इस पृथ्वी के वारिस ठहरते हैं. You know, one day I was talking to God and I was telling him, I was like, Lord, trying to be humble. मैं एक दिन परमेश्वर से बात कर रहा था और उसके सामने नम्र होने की कोशिश कर रहा था जबरदस्ती. We should know, you can come to church and for 10 weeks you can hear about the new covenant, about grace, about the love of the Father. And on the 11th, you hear the law and you can forget everything that you heard for the 10 Sundays. हो सकता है कि आप 10 रविवार तक कलीसिया आए और परमेश्वर के प्रेम, उसके अनुग्रह के बारे में सीखे, लेकिन 11वें हफ्ते कोई आके आपको अगर व्यवस्था के बारे में सिखाएगा तो आप पिछले 10 हफ्ते भूल जाएंगे. So in the same manner, I was trying to be humble before God. वैसे ही मैं भी परमेश्वर के सामने नम्र होने की कोशिश कर रहा था. And families upon families were getting saved. और परिवार के परिवार कलीसिया में आ रहे थे, उद्धार पा रहे थे. And I told Jesus, और मैंने यीशु से कहा, Jesus, प्रभु पता है, I don't want a big church. मुझे ज्यादा बड़ी कलीसिया नहीं चाहिए. I don't want many people. बहुत सारे लोग नहीं चाहिए. I was thinking the Lord will say, अब मैं सोच रहा था प्रभु कहेंगे वाह बेटा वाह. instantly he spoke to me. उसी समय उसने मुझसे बात की. And he said, उसने why कहा- not my son? उसने कहा क्यों नहीं मेरे बेटे. Ask and I will give you nations to be your inheritance. मांग और मैं देशों को तेरी विरासत के लिए दे दूंगा. Ask and I will give nations to be your inheritance. मांग और मैं देशों को तेरी विरासत के रूप में And तुझे दे as दूंगा. I am his son, so you are his son and daughter. And he's saying the same thing to you. Ask and I will give nations to be your inheritance. और जैसे मैं उसका बेटा हूं, वैसे ही आप भी उसकी औलाद हैं, उसके बेटे और बेटी हैं. और वो आपसे भी कहता है मांग और मैं तुझे देशों के देश तेरी विरासत के लिए दे दूंगा. That's why I want to turn to your neighbor and say, dream big. अपने पड़ोसी को देखे और कहें बड़े सपने देखो. Don't dream according to your pocket. अपनी जेब के मुताबिक सपने मत देखो. Dream according to God's pocket. परमेश्वर की जेब के मुताबिक सपने देखो. Amen. If we would have dreamed according to our pocket, we wouldn't have been here. अगर हमने अपनी जेब के मुताबिक सपने देखे होते तो हम भी यहाँ नहीं होते. You know what? God has just asked you to believe it. परमेश्वर ने केवल आपसे इतना कहा है कि विश्वास करो. He hasn't asked you to pay for it. उसने ये नहीं कहा कि पे करो. If you can believe, अगर विश्वास कर सकते हो you'll receive. तो आपको मिल जाएगा. Are you getting what I'm saying?
in the new covenant, he said, you are going to live in the houses that you have not built. You will eat from the vineyards that you have not planted. When the blessings will come in your life, struggles will seize your life in the name of Jesus. और उसका वायदा जो उसने वाचा में दिया वो ये था कि तुम उन घरों में रहोगे जिनको तुमने बनाने के लिए पसीना नहीं बहाया, उन बगीचों के फल खाओगे जिनको तुमने बोया नहीं. You know, one of the blessing of Abraham was अब्राहम की एक आशीष थी beautiful. सुंदरता. His wife, उसकी बीवी Sarah. सारा. When she was 65, जब वो 65 वर्ष की थी, a king desired her. एक राजा उसको चाहता था. 65 years woman. 65 वर्ष की औरत. And the king is saying, wow. और राजा उसको देख के कहता है वाह भाई. King wanted that woman to be in his harem. Harem, you know harem? Where the king has all the concubines and all the ladies like collections in one place. He wanted to be one of the trophies. और राजा चाहता था कि जहाँ उसकी बाकी पत्नी और उसकी कॉन्क्यूबाइंस है वहाँ पर उसको वो रखे. And that harem was full of super beautiful women. और वो स्थान भरा रहता था जो उस समय में सबसे सुंदर स्त्रियां होती थी उनसे. I mean, like, can you imagine a young guy comes to the church and sees a 65-year-old lady and says, wow, I want to marry her. वो पिट जरूर जाएगा, बाकी पता नहीं. Are you getting what I'm saying? Yeah. And not only that, it gets better. ये इससे भी अच्छा होता है. Not only when she was 65, when she was 90. केवल 65 पर नहीं, लेकिन 90. जब वो 90 वर्ष की थी तब. First the Pharaoh wanted her when she was 65. Now King Abimelech wants her when she's 90. पहले फिरौन को वो पसंद आई जब वो 65 वर्ष की थी, और अब अबीमेलेक को वो पसंद आ गई जब वो 90 वर्ष की है. 90. That means 90 without wrinkles. इसका मतलब बिना झुर्रियों के 90. Heavenly Botox. वो स्वर्गीय बोटॉक्स का इंजेक्शन है. Are you getting what I'm saying? What I'm saying is, one of the blessings of Abraham is that you start living above time. Time does not control you. You start controlling time. Amen? वो एक आशीष जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि समय आप पर नियंत्रण नहीं करता, लेकिन आप समय से ऊपर जीने लग जाते हैं. Amen? You can come, all the people who are seeing me for 5 years, you can come and see me after 10 years. This is how I look. जो लोग मुझे 5 साल से देखते आ रहे हैं, आप 10 साल बाद देखेंगे मैं ऐसे ही दिखूंगा. Amen? You believe it for yourself and you receive it for yourself. आप अपने लिए इसको ग्रहण करें और अपने लिए देखेंगे. Jesus, when he was alive, he was never sick. यीशु जब जिंदा था तो वो बीमार नहीं था कभी भी. He lived in abundance. He वो was able बहुत to आयत में feed जिया. 10,000 people. वो 10,000 को खिला सका. 10,000 people. 10,000. Not only that, इतना there ही were नहीं. 12 people full time with him. उसकी सेवकाई में 12 लोग हमेशा उसके साथ रहते थे. Every time traveling. हमेशा वो घूमते रहता था. If you don't know how much it would cost, take 12 people with you. Go somewhere. Pay for lunch, dinner, breakfast, pay for their hotel bills. You will know. अगर आपको नहीं पता कि 12 लोगों को अपने साथ रखकर पालने का कितना खर्चा आएगा, तो 12 लोगों को अपने साथ रखें, उनको खिलाएं पिलाएं तीनों समय, उनको होटल में रखें, आपको मालूम हो जाएगा. Not only that, केवल इतना ही नहीं, the guy who was managing his finances जो व्यक्ति उसके पैसों को संभालता था was a thief, वो चोर था. was also taking money. वो उसके गल्ले में से पैसे भी निकाला करता था. Then also Jesus was not bothered. फिर भी यीशु को फर्क नहीं पड़ता था. Why? क्यों? Because the prosperity is about continuous flow. Continuous flow. क्योंकि समृद्धि वो है जिसमें हमेशा वो प्रवाह बना रहता है. You know what? I decree, I declare, मैं ये घोषणा करता हूँ, ये no स्थापना matter करता हूँ. how much people want to steal from your life, it will not affect you. You will have so much that it will not affect you. No one can steal it from you because of the continuous flow. मैं ये घोषणा करता हूं कि फर्क नहीं पड़ता
कोई भी आपसे कितना भी चुराना क्यों ना चाहे, आपको उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि समृद्धि का वो प्रवाह आपके जीवन में होता चला जाएगा और होता चला जाएगा। You have no idea how much me and Ram were robbed. आपको कोई अंदाजा नहीं है मुझे और राम से कितना चुराया गया। But we said, doesn't matter. हम कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, Doesn't matter. फर्क नहीं पड़ता, Because the God who gave that is the God who gives today, is the Lord who will give tomorrow. We don't care. क्योंकि जो परमेश्वर जिसने तब दिया वो परमेश्वर है जो अब दे रहा है, और वही परमेश्वर है जो कल भी देगा। Some people are always crying, वो मेरा पैसा लेके भाग गया। अरे भागने दो, भागने दो, थोड़ा और दे दो उसको। Because people can steal your money, they can never steal your destiny. They can never steal your blessing. लोग आपका पैसा चुरा के भाग सकते हैं, आपकी आशीष चुरा कर नहीं भाग सकते। Are you getting? It's the blessing of the Lord that makes one rich. The वो Bible परमेश्वर says. की आशीष ही तो है जो एक मनुष्य को धनवान बना देती है। Your blessing. आपकी आशीष। Guys, are you getting? आप समझ रहे हैं? You know, I had to renew my mind from curse mentality मुझे अपने मन को उस श्राप की मानसिकता से नया करना जरूरी था, and lack. और कमी की मानसिकता। I'm telling you, even today, आज भी I don't care how much money is in my account. मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे अकाउंट में कितने Even हैं। when it drops down to few thousands. चाहे वो कुछ हजारों में क्यों ना हो, Because that क्योंकि is वो not my reality. क्योंकि वो मेरी असलियत नहीं Because है। I know मुझे पता है in my life, मेरे जीवन में there is a continuous flow. एक नियंत्रित प्रवाह There's a चलते continuous रहता है। flow. एक If you प्रवाह are in चलते रहता है। Christ, अगर I आप want to मसीह में tell हैं, you मैं that आपको you बता are दूं, living in a continuous flow. अगर आप मसीह में हैं तो मैं बता दूं कि आप उस नियंत्रित प्रवाह चलता रहता है आपके जीवन में, उस प्रवाह में आप जीते हैं। You are living in a continuous flow. आप एक प्रवाह में है जो चलता रहता है। If you want to start a business, अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हो you will have a continuous flow. तो आपके जीवन में वो प्रवाह बना रहेगा। If you want to start a ministry, अगर आप सेवकाई शुरू करना चाहते हो you will have continuous flow. तो वो प्रवाह बना रहेगा। You know, some people start ministry, it will grow to some extent and then it will stop. No, that's not the plan of God. कुछ लोग सेवकाई शुरू करते हैं और वो कुछ स्तर तक पहुंचती है फिर रुक जाती है, लेकिन ये परमेश्वर की योजना नहीं है। God's plan is growth upon growth upon growth upon multiplication. That is the plan of God for you. परमेश्वर की योजना है बढ़ोतरी पर बढ़ोतरी पर बढ़ोतरी पर बहुतायत। Come on, say this after me. मेरे साथ बोले, I will grow मैं बढ़ूंगा in every area of my life. अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में। I am unstoppable. मुझे कोई रोक नहीं सकता। I want to tell you, you all are going to grow east, west, north, south. मैं आपको बता दे रहा हूं, आप हर एक क्षेत्र में हर एक दिशा में बढ़ते चले जाएंगे। Amen? Multiplication is the plan of God. बहुतायत ही परमेश्वर की योजना Being है आपके fruitful लिए। is the plan of God. फलवंत होना ही परमेश्वर की योजना है आपके लिए। Okay, I just have 1 minute left. Galatians 3, 6 and 7. गलातियों 3, It says, just as Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness, जैसे परमेश्वर का भरोसा अब्राहम ने किया और ये उसके लिए धार्मिकता माना गया, therefore, वैसे ही know that only those who are of faith are sons of Abraham. इसीलिए जान लीजिए कि केवल वे जो विश्वास करते हैं अब्राहम की संतान है। Are you getting what I'm saying? The church does not know the difference between hope and faith. कलीसिया को आशा और विश्वास में फर्क नहीं पता। You cannot receive your healing by hope. अगर आप उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं तो अपनी चंगाई ग्रहण नहीं कर सकते। You cannot receive a breakthrough by hope. आप जो चाहते हैं आपके जीवन में हो जाए उसको आप आशा करके ग्रहण नहीं कर But सकते। all throughout years I am hearing in church, breakthrough is coming up. Breakthrough is not coming up. Breakthrough came 2018 years ago. कलीसिया में अपने जीवन में मैं कितने सालों से सुनता हूं कि वो छुटकारा आएगा, वो छुटकारा आने वाला है, वो छुटकारा आएगा नहीं, 2000 साल पहले आ चुका है। We are living in a future Christianity. हम भविष्य में होने वाली मसीहत में जीते आए हैं। So we say God will do that. हम कहते हैं God will परमेश्वर do this. करेगा। God will do that. परमेश्वर ऐसा करेगा। Christianity is not God will do. Christianity is God has done.
मसीहत ये नहीं है कि परमेश्वर ऐसा करेगा, मसीहत है परमेश्वर ने ये कर दिया है। Amen. Are you getting, church? Are you getting it? It's not future. वो भविष्य नहीं, It has happened. लेकिन वो हो चुका है। Oh, brother, God will bless you, brother. भाई No. परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। The message is not God will bless you. The संदेश ये message नहीं is है। God has blessed you in Christ Jesus. संदेश ये नहीं है कि परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, संदेश ये है कि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे चुका है But then the यीशु question में। is, if God will bless us, मेरा if ये God has सवाल already है। blessed us, then why are not everyone blessed? मेरा ये सवाल है, अगर परमेश्वर हर एक को आशीष दे चुका है तो हर कोई आशीषित क्यों नहीं जी रहा? Because whatever God has done, you tap into that by faith. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने किया है आप उसमें कदम रखते हैं विश्वास के द्वारा। I'm telling you, I used to speak hours, I would say Ephesians 1:3 in my room. Hours. घंटों मैंने इफिसियों 1:3 अपने जीवन पे घोषित किया है। Blessed be. I would lift up my hands. I अपने would get up हाथों in the को मैं morning. उठाता। I would say, Father, और कहता, पिता blessed be the Father of my Lord Jesus Christ. धन्य है मेरे प्रभु और यीशु मसीह का पिता, He has blessed me with every spiritual blessing in the heavenly places. जिसने मुझे हर एक आशीष के साथ आत्मिक स्थानों में आशीष दी I है। am blessed. मैं आशीषित हूँ, I cannot be cursed. मैं श्रापित नहीं हो I सकता, am blessed. मैं आशीषित हूँ। Blessed be the God and Father of my Lord Jesus Christ. मेरे प्रभु और यीशु मसीह का पिता धन्य हो। I said it again मैं इसको and बार again बार and बार again बार till the word began to renew my mind. जब तक ये वचन मेरे मन को नया न कर दिया। Now, no matter how much you tell me अब that फर्क it's नहीं पड़ता। generational curse, it will not go in me. अब फर्क नहीं पड़ता आप क्या सिखाओ, श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप मुझसे In मुझे fact, कोई I फर्क नहीं cannot पड़ेगा। stand these messages anymore हालत तक कि अब ये हाल है कि मैं ऐसे संदेश हम सुन भी नहीं सकता, because of the truth that is bubbling in my heart. उस सत्य के कारण जो मेरे दिल में जल रहा है। We are telling the body of Christ that they are cursed. हम मसीह की देह को बोल रहे हैं कि वो श्रापित है, We are spitting on what Jesus has तो done. हम यीशु ने जो किया उस पर थूकते हैं And we are negating all the New Testament scriptures. और सारी नई वाचा नई नियम की उन आयतों को हम नकारते हैं। You are not cursed. You are seated with Christ Jesus in the heavenly places. You are blessed and you are uncursable. आप श्रापित नहीं हैं, आप यीशु के साथ स्वर्ग में बैठाए गए हैं सिंहासन पर और आपको श्राप दिया ही नहीं जा सकता। Are you telling me you have become one with the Spirit of God? You are seated with Christ in the heavenly places. Holy Spirit lives inside of you and someone can curse you? क्या आप मुझसे ये कह रहे हैं कि आप यीशु मसीह के साथ एक आत्मा हो चुके हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है और आपको कोई श्राप दे सकता है? If they can curse you, then that means they are cursing Jesus. अगर कोई आपको श्राप देता है इसका मतलब ये है कि वो यीशु को श्राप दे Because you रहा है, have become one with Him. क्योंकि आप उसके साथ एक हो चुके हैं। That's what Paul says to the church of Corinthians. यही है जो पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया से कहता है। Okay, guys, hear this carefully. ध्यान से This सुनिए। truth will set you free from ये every सत्य sinful आपको habit. आजाद कर देगा हर एक पाप की आदत से। Hear carefully. If there is any bad habit in your life, this truth will set you free. अगर कोई बुरी लत है आपके जीवन में, ये सत्य आपको आजाद कर देगा। There were people who were going to prostitutes in the church of Corinthians. कुरिन्थ की कलीसिया में ऐसे लोग थे जो वेश्याओं के पास जाया करते थे। Paul didn't tell them, you are going to a prostitute, you will go to hell. पौलुस ने उनसे ये नहीं लिखा कि तुम वेश्याओं के पास जा रहे हो, तुम नरक जाओगे, Because we don't understand the union. क्योंकि हम उस एकता को नहीं समझते जो हमारी Once मसीह के you साथ are है। united with Christ, there is no separation. एक बार आप यीशु के साथ जुड़ गए तो उससे अलग होना संभव नहीं I है। said once you are united with Christ, there is no separation. मैं कह रहा हूं एक बार आप मसीह के साथ जुड़ गए तो उससे अलग होना संभव नहीं है। I said once you are united with Christ, there is no separation. मैं कह रहा हूं एक बार आप मसीह से जुड़ गए तो अलग नहीं हो सकते। And that's why Paul tells the church, और इसीलिए पौलुस कलीसिया से कहते he हैं, said, don't you know, वो कहते हैं तुम्हें नहीं पता, when you go to a prostitute, जब तुम एक वेश्या के पास जाते हो you join Christ to that prostitute. तो तुम यीशु को उस वेश्या के साथ जोड़ रहे हो। He's not saying that Jesus will leave you. वो ये नहीं कह रहा यीशु तुम्हें छोड़ देगा, He's saying because of this union between you and Jesus, वो कह रहा है यीशु और तुम्हारे बीच में जो मिलन हो चुका है, wherever you go, Jesus is bound to जहां go. कहीं तुम जाओगे यीशु को जाना पड़ेगा। Amen?
this truth, if you will just meditate, if you put a cigarette in your mouth, you're putting a cigarette in the mouth of Jesus. अगर ये सत्य आप इसमें मनन करने लग जाएं, अगर आप होठों पे सिगरेट लगाते हैं तो आप यीशु के होठों पे सिगरेट रखते If हैं. you're watching a pornographic website, you are making Jesus watch that अगर website. आप कोई गंदी वेबसाइट देख रहे हैं तो आप यीशु को भी वो दिखा रहे हैं. Guys, I want to tell you, Jesus would not leave you, मैं आपको बता रहा हूँ यीशु आपको छोड़ेगा नहीं. but you are making Jesus to do and involve in that wrong thing. लेकिन आप यीशु को उसमें शामिल कर रहे हैं जो कुछ आप कर रहे हैं. This union is inseparable. ये जो आप जुड़े हैं यीशु के साथ, ये अलग नहीं किया जा Many young सकता. people, I want to talk to you just for 2 जो minutes. जवान लोग हैं उनसे मैं बात Many करना people चाहता think हूँ. that sin is people are enjoying who are sinning. बहुत से लोगों को लगता है कि लोग तो मजा कर रहे हैं पाप करके. I want to tell you, people who are sinning are miserable. मैं आपको बता देता हूँ जो लोग पाप कर रहे हैं वो दयनीय व्यवस्था में हैं. If you think that a person who is committing adultery, leaving his wife, going to some beautiful young girl, if you think that is bringing him pleasure, you're highly mistaken. अगर आपको लगता है एक पति अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है तो उसको बहुत मजा आएगा, तो आप गलत हैं. They are in torment. वो बहुत सताव में जीते हैं. It's a blessing to live when your conscience is clean. ये एक आशीष है ऐसी जिंदगी जीना जहां पर आपका अंतर मन आप पर दोष नहीं लगा सकता. When you live a life, your conscience is clean. आप एक ऐसा जीवन जीते हैं जहां आपका अंतर मन साफ है. Amen. Just start meditating this truth from today. केवल इस सच पे आज से सोचना शुरू करें. You have been united. There is a union between you and Jesus. आप और यीशु के बीच में एक ऐसा मिलाप हुआ है Nothing can separate that union. जिसको कोई भी अलग नहीं कर सकता. Nothing can separate that union. कुछ भी उसको अलग नहीं कर सकता. Amen. You have become one with him. आप उसके साथ एक हो चुके हो, One with him. एक हो गए हो. So when you get up in the morning, तो जब सुबह उठो, look into the mirror, शीशे में देखो start speaking. और बोलना शुरू करो. Thank you, Father. धन्यवाद पिता, I am blessed. मैं आशीषित हूँ. Whatever I do जो कुछ मैं करता हूँ is blessed. वो आशीषित है. Wherever I go जहाँ कहीं मैं जाता हूँ is blessed. वो आशीषित है. You know, when I travel, I don't pray for, oh Lord, protect me. I put your blood in the engine and in the tire. And no, the blood is not for that. जब कभी मैं ट्रैवल करता हूँ एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता हूँ तो मैं ये नहीं कहता तेरे लहू को मैं इंजन में लगाता हूँ, गाड़ी में लगाता हूँ. मैं लहू इस सब के लिए नहीं है. I say, thank you, Father. मैं कहता हूँ धन्यवाद पिता, I am a righteous man. मैं एक धर्मी जन हूँ. And your word says, और आपका वचन कहता है in the path of righteous, धर्मी जन के रास्ते में there is no death. मृत्यु नहीं है. In the path of righteous, धर्मी जन के रास्तों में there is no death. अनंत जीवन है. Because of you, आपकी वजह से no one will die in that plane. No one will die in that train. No one will die in that car. Because in the path of righteous, there is no death. आपकी वजह से जिस प्लेन में आप जा रहे हैं कोई नहीं मरेगा, जिस बस में आप बैठे कोई नहीं मरेगा, जिस ट्रेन में गाड़ी में आप है कोई नहीं मरेगा, क्योंकि धर्मी जन के रास्ते में मृत्यु है ही नहीं. Are you getting what I'm saying? No matter what is happening all around you, फर्क नहीं पड़ता आपके आसपास क्या हो रहा है. you are the righteousness of God in Christ Jesus. आप परमेश्वर की धार्मिकता हो यीशु And मसीह in में. your path, और आपके रास्तों में there is no death. मृत्यु है ही नहीं. You will not see death. आप मृत्यु को नहीं देखेंगे. Your family will not see death. आपका परिवार मृत्यु को नहीं Your देखेगा. children will not see death. आपके बच्चे मृत्यु को नहीं देखेंगे. Your business will not see death. आपका व्यवसाय मृत्यु को नहीं Your देखेगा. ministry will not see death. आपकी सेवकाई मृत्यु को नहीं देखेगी. But the Bible says लेकिन बाइबल कहती है that the path of the righteous कि धर्मी जन का रास्ता shines brighter and brighter and brighter and more glory and more glory and more glory. धर्मी जन का मार्ग महिमा से महिमा से महिमा से महिमा बढ़ता चला जाता है. Amen. Whoa. So there is not yo-yo Christianity is not new covenantal. सो ये खाइयों और पहाड़ों की मसीहत नई वाचा की नहीं है. Oh brother, ओ भाई 2016 I was on mountain. 2016 में तो मैं पहाड़ के ऊपर था. Oh. ओ 2018 I'm in 18 में मैं गड्ढे में हूँ. No.
जी नहीं। The path of righteous धर्मी जन का मार्ग shines brighter महिमा से and brighter महिमा से and brighter महिमा से and brighter. महिमा से चमकता रहता है। Amen.